नाउ इन केस ऑफ एनिमल किंगडम हम लोगों ने पहले ही देखा, इट इज डिवाइडेड इनटू अग्नाथा, ग्नाथा, अग्नाथा. You have to see the fishes which doesn't have the jaw, and in case of gnatha there are fishes with jaw. With jaw they are again divided into cartilaginous and bony fishes. So we will start with this cyclostomata. Okay, अब हम लोग cyclostomata देखते हैं. So this is important phylum that is called Chordata. Okay, now we will go for the cyclostomata. Cyclostomata. Stoma means mouth, cyclo means circular. So these are basically ectoparasitic fishes. This is very important. Fish है लेकिन कैसी है? Ectoparasite, right? Why they are called parasite? Because they are present on other fishes. Like this is your normal fish with fins, okay, with scales, and on their body these are the your cyclostomata. So cyclostomata, which you draw red in color, they attach to the body of another fishes. Their body is elongated, that is elongated, it's like long, along with 6 to 15 pair of gills. Respiration अभी पानी के अंदर है, so they need the gills. How many? Like बहुत सारे, like it is 5 to 15 pair of gill slit. Gill slit और gills हम लोगों ने already पढ़ लिए, right? So they are basically ectoparasite. And how many? 5 to 15 books में 6 to 15 pairs of gill slit there, right? Now if they don't have jaw, their mouth is sucking, their mouth is circular. अब इनको अगर circular mouth है, if there is a mouth which is circular और वो पैरासाइट है, तो उनको अटैच होना पड़ेगा, सो उनको इस तरह से सक करना पड़ेगा किसी और फिश को. सो देयर माउथ इज सकिंग एंड दे सक द अदर फिशेस. ओके, दूसरी फिश की वॉल को सक करके होल्ड करके रखेंगे. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग देयर माउथ इज सर्क्यूलर एंड सकिंग टाइप. सकिंग एक्शन है इसीलिए तो यहां पर होल्ड रहेगा ना वो, राइट. सो दिस इज द, दैट्स व्हाई दे कम्स अंडर द अग्नाथा. अग्नाथा में है ना वो, दैट इज कॉल्ड साइक्लोस्टोमा. ओके, दे डोंट हैव स्केल. तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, नो स्केल्स ऑन देयर बॉडी. फिश जैसे स्केल नहीं उनके बॉडी पर, फिन्स भी नहीं है, नो फिन्स. लॉजिकल है, वो खुद अगर स्विम करता तो उसको फिन्स की जरूरत थी, वो तो अटैच है, दैट्स व्हाई दे डोंट हैव द फिन्स. ओके, एंड द बॉडी इज cartilaginous. Body it's somewhat cartilaginous in body, right? Circulation तो अभी सब में आपको close circulation ही आएगा. ट्रिप्लोब्लास्टिक है, coelomic cavity है. Usually they found marine in sea water. You can say their habitat is sea water. Cyclostoma, they are usually marine, but is very important here. But they migrate. वो migrate हो जाते हैं कहां पर? At the shore of sea के धीरे धीरे बाहर जाएंगे. They just migrate to the shore, जहां पर जो floating water, not floating, जो water है, जो moving water, वो थोड़ा रुक जाते हैं, वहां पर वो migrate हो जाते हैं, right? किसके लिए? Spawning के लिए. What is this spawning? Spawning यानी egg laying. To give the egg, they detach from the body of the fish, जहां वो पैरासाइट करके काम करती है नहीं, उससे सक कर लेती है. इस फिश का न्यूट्रिशन ये कर लेगी सब, वहां से डिटैच होके सी के शोर की तरफ चली जाएगी, राइट. यानी रिवर में जा सकती है जहां पर वाटर ज्यादा फ्लोटिंग नहीं है, राइट. और वहां जाके शी कैन गिव द एग, दैट इज हम लोग वी कॉल देम स्पॉनिंग इन फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर में देना, इसीलिए तो वहां से निकल जाएगी वो, राइट. Now, whole fish, the mother fish, depend upon the
दिस होस्ट फिश अब वहां से निकल चुकी है, राइट? क्यों निकली है? बिकॉज शी हैज टू गिव द और शी हैज टू ले द एग्स. देन व्हाट हैपेंड आफ्टर लेइंग द एग्स, नाउ शी डजंट हैव अनदर फिश जिसको जाके वो होल्ड कर सके. नाउ शी विल डाई. The mother of that particular small baby egg fishes will die. क्यों हुआ? They give the birth to their babies or eggs. उसके बाद she will die because she is not attached to the another host fish. Okay, and now the eggs or spawning she did. These eggs hatch. Then larval fishes came out. This larval fishes came out, right? और धीरे धीरे इन larval fishes का क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस होगा. पहले इनको थोड़े से फिन्स वगैरह रहेंगे, जब वो छोटे रहेंगे देन दे स्विम एंड देन slowly they increase in their size and then they attach to the host fish. उसके बाद उनके पास already no circular mouth है, no fins, okay, no scales and they attach to the host fish as a parasite. So इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस. लार्वल स्टेज से एडल्ट होना, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन. ओके, एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोस्टोमेटा फिश में आएगा पेट्रोमाइजोन. This is the one example. Another example is that is called mixine करके fish है, mixine. So myzon, mixine, these are petromyzon को common name है lamprey fish. That is called lamprey fish. mixine को हम लोग hag fish बोलते हैं. What is hag fish करके आपको MCQ आएगा. That is called the mixine. So these are the property of your which one? Cyclostomata. तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट, दे डोंट हैव स्केल्स एंड दे डोंट हैव फिन्स. ये दूसरा इंपॉर्टेंट है, दे आर मरीन बट दे माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग एंड आफ्टर लेइंग दे शी विल डाई एंड द मेटामॉर्फोसिस ऑफ द दैट इज एग्स इनटू द एडल्ट फॉर्म व्हिच इज इन द फ्रेश वाटर. और फिर फ्रेश वाटर में से किसको अटैच हो जाएंगे? होस्ट को, और वहां वो पैरासाइटिक करके एक्ट करेंगे. सो दिस इज योर विच वन? दैट इज कॉल्ड साइक्लोस्टोमेटा. दैट इज कॉल्ड अग्नैथा. अब ग्नैथा एज पर द क्लासिफिकेशन अब आएगा आपका ग्नैथा. अब जो भी फिशेस है या जो भी आपकी दूसरे क्लास है टेट्रापोड वाले, वो सारे आते हैं ग्नैथा में. इन केस ऑफ ग्नैथा वी ऑलरेडी सेड ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन वी डिवाइड ग्नैथा इनटू दोज हु लोकोमोट विद द हेल्प ऑफ फिन्स, तो उसमें सारे फिशेस आ जाएंगे, एंड दोज हु लोकोमोट विद द हेल्प ऑफ लिम्ब. ओके, टेट्रापोड जिसको बोलते हैं, वो क्या कौन से आएंगे? मैमल्स हो गए, एम्फीबियन हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एव्स हो गए, तो वो किधर आ गए? टेट्रापोड में. तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वी विल सी द सुपर क्लास जो है तुम्हारा पाइसेस है, और दूसरा सुपर क्लास तुम्हारा कौन सा है? टेट्रापोड है. तो हम लोग पाइसेस सुपर क्लास देखते हैं. दिस पाइसेस सुपर क्लास इज डिवाइडेड इनटू टू क्लास, दैट इज कॉल्ड, वन इज कॉल्ड कार्टिलेजिनस फिश. यहां कर देते यहां से. ओके, वन इज कॉल्ड कार्टिलेजिनस फिश एंड अनदर इज कॉल्ड बोनी फिश. तो व्हेन आई से इट इज अ कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस, दोनों में तो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन फिन्स ही है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी? व्हाट इज द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन केस ऑफ अग्नैथा? अग्नैथा में कोई फिन्स नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो अटैच रहते हैं, पैरासाइटिक है. बट इन केस ऑफ पाइसेस विच इज सुपर क्लास, देयर इज अ कॉन्ड्रिक्थिस एंड दैट इज कॉल्ड ऑस्टिक्थिस जिसको बोलते हैं हम लोग. और उनके है कार्टिलेजिनस फिशेस, तो हम लोग यहाँ कॉन्ड्रिक्थिस लिखते हैं. बोनी फिशेस को क्या बोलते हैं? ऑस्टिक्थिस. इन दिस कॉन्ड्रिक्थिस दे आर कार्टिलेजिनस fishes, and osteichthyes, their skeleton is made up of bone, so that's why they are called bony fishes. So that's the first difference. Usually this chondrichthyes or cartilaginous fishes, they are marine. सी में ज्यादा है, मरीन रहे, उनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन रहती, राइट? ये हो गई फ्रेश वाटर वाली फिश, बोनी फिश. स्ट्रीम लाइन है ना इस तरह से, इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन. थोड़ा सा नॉट रियली द ओवल, पैरेलल वाली जैसी. इट इज द बॉडी इज स्ट्रीम लाइन. ओके, सो बॉडी इज बेसिकली स्ट्रीम लाइन.
एंडोस्केलेटन तो कार्टिलेजिनस है, दे आर फाउंड इन द मरीन. ओके, these are also found in the marine also and fresh water also, right? But they are exclusively the marine one, right? Here, in case of cartilaginous fishes, I will show you one example of the fishes. Okay, basically the mouth is not at the tip. ये है आपका टिप का माउथ. यहां पर इफ यू सी द फिशेस, द माउथ इज बेसिकली वेंट्रल साइड, डॉर्सल साइड में नहीं, ऐसा टिप पे तो है ही नहीं. सो इफ यू सी, आई विल शो यू द सम फिशेस. ओके, सो द माउथ इज वेंट्रल. ओके, और यहां पर माउथ कहां है? टिप पर है. सो इफ यू सी सम ऑफ द फिशेस विच इज अ कार्टिलेजिनस, द माउथ इज वेंट्रल लोकेशन यहां पर इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, एंड हियर द माउथ इज प्रेजेंट एट द टिप इन केस ऑफ योर कार्टिलेजिनस स्पीशीज. दोनों एक्वेटिक है तो दोनों में गिल्स ही रहने वाले, राइट? सो दोनों एक्वेटिक है तो दोनों में गिल स्लिट ही रहेंगे. सो यहां पर भी गिल स्लिट है, दैट इज फॉल एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए गिल स्लिट है. यहां पर भी गिल स्लिट ही रहेंगी. नाउ यू कैन सी द माउथ ऑफ दिस फिश. देखो माउथ किधर जा रहा है? नीचे. कैन यू सी द माउथ इज नॉट रियली एट द टिप. मैंने क्या बोला था? माउथ इज वेंट्रल. बेसिकली द माउथ इज वेंट्रल, माउथ टिप पर नहीं है. सो ये इनका एक कार्टिलेजिनस फिश का दैट इज द प्रॉपर्टी है. सो माउथ इज बेसिकली द वेंट्रल, नॉट एट द टिप. नाउ गिल स्लिट है, बट गिल स्लिट कैसे है? हियर इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेज द गिल स्लिट इज विदाउट कवर. और कवर को क्या बोलते हैं? ओपेरक्यूलम. कवर को क्या बोलते हैं? ओपेरक्यूलम. यानी ये हो गया आपके फिश के ऊपर के गिल स्लिट, और इसके ऊपर फ्लैप रहेंगे, ये गिल स्लिट कवर रहेंगे. तो आपको जो गिल्स है जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं वो दिखेंगे क्या आपको? यहां पर दिखेंगे, सीधा गिल स्लिट दिखेंगे, क्योंकि यहां पर वो कवर्ड नहीं है. यहां पर आपके जो फिशेस के ऊपर जो गिल स्लिट है, जो ओपनिंग है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, वो आपको नहीं दिखेंगे, बिकॉज देयर इज अ ओपेरक्यूलम. ओपेरक्यूलम यानी वो गिल स्लिट कवर है, और यहां पर गिल स्लिट आपको दिखेंगे बिकॉज दे आर विदाउट ओपेरक्यूलम. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द गिल स्लिट. यहाँ विदाउट ओपेरक्यूलम है और यहाँ पर ओपेरक्यूलेटेड है. थोड़ा सा साइड में लेके जाते हैं इसको, राइट? थोड़ा सा हम लोग इसको ये कर देते हैं. नाउ यू कैन सी, देखो वेंट्रल साइड में. ओके, सो यू कैन सी हियर देयर आर गिल स्लिट हमको डायरेक्टली दिखते हैं बिकॉज दे आर बेसिकली नॉट ओपेरक्यूलेटेड. ये तो हो गया आपका किसका? दैट इज कॉल्ड द कार्टिलेजिनस फिश का. एक और स्किन. स्किन इज बेसिकली इट इज वेरी टफ. हम लोग एक दूसरी फिश देखते हैं. द स्किन, इफ यू सी द स्किन ऑफ दिस फिश, इट इज वेरी टफ. इट्स टफ विथ placoid टाइप ऑफ स्केल. स्केल कैसे रहेंगे? दे आर placoid टाइप. स्किन इज टफ एंड द स्केल आर दैट इज कॉल्ड placoid टाइप. placoid मीन्स ये अगर फिश है, दे आर बैकवर्डली डायरेक्टेड. दे आर बैकवर्डली डायरेक्टेड. ओके, placoid यानी बैकवर्डली डायरेक्टेड. टफ रहेगी इसके, बिकॉज दे आर कार्टिलेजिनस फिश, दे आर placoid. उनकी जो जॉज देखो आप इनके, राइट? इफ यू सी द जॉ ऑफ दिस फिश, दे आर वेरी पावरफुल. द जॉज ऑफ दिस फिशेज, दे आर वेरी पावरफुल जॉ इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिश. बट इन केस ऑफ योर बोनी फिशेज, इनका जो स्किन है वो बहुत सॉफ्ट रहेगा. ओके, द स्किन इज सॉफ्ट, और जो स्केल है वो साइक्लोइड है, placoid नहीं है. द स्केल आर साइक्लोइड, और इसको बहुत बार टिनोइड भी बोलते हैं, बट साइक्लोइड इज अ गुड वर्ड. यानी इस तरह से याद रखो, ये होगी साइक्लोइड स्केल और ये होगी placoid स्केल. ओके, सो यहाँ placoid स्केल और यहाँ साइक्लोइड स्केल जो फिश के ऊपर रहती. व्हाट अबाउट द, व्हाट इज दैट कॉल्ड? साइक्लोस्टोमा. वहां स्केल ही नहीं है, राइट? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू सी हियर इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिश, ये जो उसके जॉ बहुत पावरफुल है, उसके टीथ देखो आप. क्यों इतना इसको ये बनाया है? बिकॉज दे डोंट हैव द बोनी स्केलेटन. उनका स्केलेटन कैसा है? कार्टिलेजिनस. दैट इज व्हाई इट इज मोर टफ
फ्रॉम आउटर साइड. ये बोनी फिशेस है, दे आर मोर टफ फ्रॉम द इनर साइड. अब एक और चीज है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ऑल दिस कार्टिलेजिनस फिशेस, अगर आप इनको देखोगे तो वो कंटिन्यूअसली, either it is a day or either it is a night, they are continuously swimming. They are continuously swimming. अब continuously swimming क्यों करते होंगे? Because they don't have the air bladder. उनके पास air bladder गिल स्लिट को अटैच नहीं है. They don't have the air bladder. अब air bladder किस लिए? This basically fish. ये क्या करते हैं फिशेस? ये वाली आपकी बोनी फिश है, ऊपर जाएंगी, ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व कर देंगी, एयर ब्लैडर में रखेंगी, और जब उसको रेस्ट करना है तब क्या करेगी, जो ऑक्सीजन उसके ब्लैडर में वो यूज करेंगे. एट दैट टाइम शी इज टेकिंग रेस्ट, क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर है, बिकॉज दे हैव एयर ब्लैडर. उस ब्लैडर में वो ऑक्सीजन वाली एयर लेके रह सकती है. दैट इज वाई शी कैन टेक द रेस्ट. पर इनके पास तो एयर ब्लैडर ही नहीं है. दैट्स व्हाई शी, दिस कार्टिलेजिनस फिशेस, दे आर कंटिन्यूअसली स्विमिंग. ओके, सो दे स्विम कंटिन्यूअसली एंड दे आर नॉट रियली स्विमिंग कंटिन्यूअसली. ओके, हार्ट, in both the fishes the heart is there, and heart is two chamber. कितने चेंबर है? ह्यूमन में 4 चेंबर है और फिशेस में 2 चेंबर. एक ऑरिकल और नीचे एक वेंट्रिकल. याद रखना है आपको. इन दिस एनी फिशेस द हार्ट इज प्रेजेंट, इट इज हैविंग 2, एंड दिस फिशेस आर बेसिकली कोल्ड ब्लडेड एनिमल. कोल्ड ब्लडेड एनिमल. व्हाट इज मीन बाय कोल्ड ब्लडेड एनिमल? इनका दूसरा नाम है पोइकिलोथर्मस. कोल्ड ब्लडेड को क्या बोलते हैं हम लोग? पोइकिलोथर्मस. व्हाट इज मीन बाय पोइकिलोथर्मस और कोल्ड ब्लडेड? लैक ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर. ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड. हम लोग कर पाते हैं, वी कैन मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर. दैट्स व्हाई वी आर नॉट कोल्ड ब्लडेड, वी आर वार्म ब्लडेड. वी आर कॉल्ड होमियोथर्म्स, बट दीज आर कोल्ड ब्लडेड क्योंकि वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पोइकिलोथर्मस. एंड द सेक्सेस आर 100% सेपरेट. दे आर लाइक बेसिकली डायोशियस, राइट? बोथ. ये तो कॉमन कैरेक्टर है, दैट इज डायोशियस मेल फिश एंड फीमेल फिश, दे आर डायोशियस. देयर इज वन मोर थिंग, इनके जो फिन्स है, अगर ये फिश को आप थोड़ा सा साइड में करोगे, राइट, इफ यू सी, ये जो फिन्स रहते पीछे वाले, यहाँ पर एक मेल फिश में एक इस तरह से होल्ड करने के लिए एक चीज अटैच रहती फिन्स को, उसको क्लास्पर बोलते. क्या बोलते हैं उसको? क्लास्पर. इन केस ऑफ मेल फिश द क्लास्पर इज प्रेजेंट. क्लास्पर इसलिए कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द मेल फिश होल्ड द फीमेल फिश विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास्पर. सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग. इन केस ऑफ cartilaginous fish you can see the clasper, but in both there is the sexes are separate. So this is all about your, and fertilization is usually they are aquatic है, फिर भी fertilization is internal. So male gamete enter into the body of female gamete, and inside the body of female fish there is a fertilization. वहां जाके zygote form होगा. ओके, and whatever that is called eggs तैयार होंगे, and then these eggs are going to lay down और hatch, बाहर आके hatch होंगे. लेकिन fertilization कैसा है फिश में? ये फिश में that is called internal fertilization. So this is a difference between in case of that is called cartilaginous fish and bony fish. लेकिन bony fish में the fertilization is external. याद रखना है आपको. बोनी फिश में एक्सटर्नल और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. तो जो जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है हम लोगों ने इधर उधर लिखे हैं. अब जो कॉमन पॉइंट है, राइट, डायोशियस कॉमन है दोनों में, क्लास्पर सिर्फ यहाँ रहेगा मेल में, कोल्ड ब्लडेड कॉमन है, पोइकिलोथर्मस इज द अनदर नेम टू द लैक ऑफ. ओके, so these are basically, now these are cartilaginous, these are bony, these are marine and fresh water. Mouth ventral, mouth at the tip. Gill slit are there, both gill slits are there, but these are without cover, these are with cover. Here the skin is thick, placoid scale, here it is soft and cycloid scale. Powerful jaw है इनके teeth में. ओके, यहाँ पर powerful jaw की जरूरत नहीं है, राइट?
एयर ब्लैडर नहीं है इसलिए कंटिन्यूसली स्विम करती, यहाँ पर एयर ब्लैडर है इसलिए कंटिन्यूसली स्विम नहीं करती। यहाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन योर विच वन, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेजिनस फिशेस एंड द बोनी फिशेस, विच कम्स अंडर दैट इज कॉल्ड सुपर क्लास, दैट इज कॉल्ड पाइसेस। क्लास कौन से ऑस्टिक्थिस एंड कॉन्ट्रिक्थिस। सो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ ऑस्टिक्थिस? ऑस्टिक्थिस यानी बोनी फिशेस। हम लोग देखते हैं बोनी फिशेस। इसके पहले हम लोग देखते हैं व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ योर विच वन, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिश, इनके जो एग्जांपल है, राइट। सो कार्टिलेजिनस फिशेस में, ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द कार्टिलेजिनस फिशेस एग्जांपल इज स्कोलियोडॉन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल देम डॉग फिश। इनका माउथ देखो एकदम, द माउथ इज स्केरी, ओके, टीथ उनके बहुत शार्प रहते हैं, दे आर कॉल्ड डॉग फिश। उसका माउथ डॉग जैसा रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डॉग फिश, ओके। इसका कैसा है, सॉ जैसा है, यानी यू जस्ट cut, so it is called sawfish. These are called the sawfish, okay. So it is called pristo is called sawfish. इसी में आपकी white shark जो इसके बाद हम लोगों ने देखी थी, right? So this shark, this one is animated cartoon, it white shark, देखो वेंट्रल माउथ है, टिप देखो, इसके बाद एक एनिमेशन, दिस शार्क यू कैन सी हियर वेंट्रल, ये दैट इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ योर विच वन, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेजिनस फिशेस। सो दीज आर ऑलमोस्ट सम ऑफ द फिशेस यू कैन सी हियर। थोड़ा सा इधर करके देखते हैं, राइट, यू कैन सी, राइट, इट इज कमिंग टुवर्ड्स मी, बट सी how scary, whenever you look at her, they are very scary, they are cartilaginous but they are more scary। ventral है, gill slit उनके open है, right, skin बहुत tough और hard है, placoid type के scale है, उनके teeth dentition देखो, थोड़ा बड़ा कर सकते, क्या देखते हैं हम लोग इसको, if you see, can you see, तो देखो अभी, can you see the teeth, they are very powerful, right। so this is all about your which one, ये है आपका, दैट इज कॉल्ड द बोनी शार्क, दैट इज कॉल्ड द व्हाइट, जिसको हम लोग कार्केड्रॉन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्केड्रॉन। तो ये सारे एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, राइट, दैट इज कॉल्ड कार्केरोड्रॉन, दैट इज जायंट व्हाइट शार्क विच कम अंडर योर विच वन, कार्टिलेजिनस फिशेस। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं बोनी फिशेस के, ओके, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ओके। नाउ वी विल गो फॉर द बोनी फिशेस। बोनी फिशेस आर डिवाइडेड इनटू 3। एक है जो सी वाटर में मिलते हैं, मरीन, फ्रेश वाटर में मिलने, और आपके जो घर में है, दैट इज कॉल्ड एक्वेरियम। नाउ सी वाटर में मिलने वाले हैं, दैट इज अ मरीन, दैट इज द सबसे पहले सी हॉर्स, वन इज कॉल्ड सी हॉर्स, ओके, इस तरह से रहता है फिशेस, राइट, सो यू कैन सी, सो दिस इज द सी हॉर्स। Exocetus is the flying fish, and hippo, that is called hippocampus. Hippocampus is seahorse. Okay, so seahorse कौन है, hippocampus, और exocetus क्या है, that is called flying fish। तो ये दोनों क्या है, मरीन फिशेज, बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में मरीन कौन सी इसमें। और जो फ्रेश वाटर फिश में है, दैट इज कॉल्ड लैबियो हो गया, दैट इज कॉल्ड रोहू, कतला, कतला का नाम ही कटला ही है, राइट, रोहू हो गया, कटला हो गया, मगर्स हो गया, मगर जिसको बोलते हैं, राइट, दिस ऑल कम, दैट इज कॉल्ड खिलारियस, ये उनके दैट इज कॉल्ड जोलॉजिकल जो नेम है, और ये उनके कॉमन नेम है, रोहू, कटला, मगर, राइट। सो दे ऑल कम्स इन द फ्रेश वाटर फिश। बाकी तो आपको ऑलरेडी पता है एक्वेरियम में मिलने वाले, राइट। सो एक्वेरियम जो आपके घर में रहता है, राइट, सो नॉर्मल आपके एक्वेरियम में एंजल फिश रहता है, कैन सी द एंजल फिश, ओके। देन देयर इज वन इज कॉल्ड फाइटिंग फिश, हम लोग लेके आते हैं एक्वेरियम में, दैट इज कॉल्ड फाइटिंग फिश, जिसको बेटा बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बेटा। बेटा इज द name, okay, scientific name, and that is for the fighting fish। और angel fish का जो नाम है, that is called the pterophyllum,
टेरोफाइलम। सो ये है आपके 3 टाइप ऑफ बोनी फिशेस। मरीन में मिलने वाले सी हॉर्स और फ्लाइंग फिश, फ्रेश वाटर में मिलने वाले रोहू, कतला, मगर, और एक्वेरियम में हम लोग कॉमन यूज करते हैं एंजल और फाइटिंग फिश। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन फिशेस। ओके, कार्टिलेजिनस फिशेस हो गए और बोनी फिशेस हो गए, राइट। तो कैसे हम लोगों ने डिवाइड किया ग्नैथा अग्नैथा वर्टिब्रेटा को। अग्नैथा में साइक्लोस्टोमेटा हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग ग्नैथा में जाएंगे। ग्नैथा में क्या था, एक पाइसेस था जिसमें दोनों फिशेस आई थी, कार्टिलेजिनस और बोनी। अब आएगा आपका टेट्रापॉड, यहां पर 4 क्लास आएंगे। एक है एम्फीबियन, दूसरा है रेप्टाइल्स, फिर एव्स और मैमल्स। ये हो गया आपके कौन से, दैट इज कॉल्ड टेट्रापॉड।